رسول الله يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسین ساعتیں قریب سے قریب تر ہیں۔ آج 11ویں شب ہے اور کل آنے والی شب 12ویں ہے، اور آج ہی سے ماحول میں جو گرمی نظر آتی ہے یہ بتاتی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہم مسلمانوں کی روح کی غذا ہے، ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے قلب کا سرور ہے، اور کیوں نہ ہو بغیر ان کے ذکر کیے ایک مسلمان کی زندگی مردہ کی طرح ہے۔ مردہ دلوں میں روح پھونکنا اور جان ڈالنا جس نام سے ہوتا ہے وہ نام مصطفیٰ ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہر ہفتے میلاد کی محفل ہو، ایسا نہیں کہ صرف ربیع الاول کی دنوں میں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ جشن کا ماحول سال میں ایک بار ضرور آتا ہے، لیکن میرے نبی کی یاد ہر گھڑی ہر لمحہ ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جتنی بھی خوشیاں منائے انسان وہ کم ہے۔ سورہ رحمان آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں کتنی مرتبہ آیتیں آتی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشہور ہے۔ جیسے یہ آیت پڑھتے ہیں لوگوں کا ذہن بھی چلا جاتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کثرت سے اس میں یہ آیت آئی ہے، اس کا مطلب سمجھا آپ نے؟ مطلب بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، ترجمہ معلوم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے جنات و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، یہ جسم کے اعضاء اللہ کی نعمت ہے، اور تمہیں سمجھ بوجھ عقل جو دی گئی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا سلیقہ دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، رشتہ دار دیے، اولاد دیے، نعمت ہے۔ یہ دنیا بھر کی چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو میرے عزیزو
जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झुटलाया उसने पूरी कायनात की नेमतों को झुटला दिया, पूरी कायनात की नेमतों को झुटलाया, क्योंकि जो भी नेमतें मिली हैं वो उन्हीं के दम कदम से मिली हैं। चांद को रोशनी मिली, सूरज को चमक मिली, ये सारे सितारों की जगमगाहट ये नूर मुस्तफा की बरकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बदौलत ही सब कुछ मिला है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने कायनात हैं, असले कायनात हैं, रूहे कायनात हैं। और हम मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अय्याम में कसरत से मेरे आका का जिक्र करते हैं। उसकी वजह भी मैं बताऊं। अभी मनकूस मौलूद शरीफ से आप फरागत हासिल किए होंगे। रोजाना इस मस्जिद में मौलूद पाक की तिलावत हो रही है। मनकूस मौलूद में ये रिवायत मौजूद है, अरबी में लिखी हुई है। आखिरी रिवायत मौलूद पाक की शेख दारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, वो फरमाते हैं कि उनके बगल में जो रावी है वो कहते हैं कि मेरे बगल में एक गैर मुस्लिम रहता था, जिम्मी काफिर, और जब जब मैं मौलूद की महफिल रखता था तो वो चिढ़ जाता था। कहा कि क्या है तू हर बार ये इस महीने की 12वीं तारीख को या फिर रबीउल अव्वल आए तो तू ये महफिल सजाता है। तो वो तंज करता, मजाक करता। तो ये जो रिवायत करने वाले रावी हो कहते मेरे दिल पर ये शाख गुजरता, कोई हुजूर के नाम पर उनकी महफिल पर कुछ कहे तो जाहिर सी बात है सुन्नी का दिल तड़प उठता है। हाँ जाहिर सी बात है तकलीफ होती है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक तकलीफ गुजरी और मैं इसी कल्क में रंजीदा होकर के सो गया। मैं सोया तो ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा तो गमगीन क्यों है? तो इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी विलादत के दिन और ये इस महीने में खास करके महफिल मुनाकिद करता हूँ। वअदउल फुकरा व अअमलु मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकीरों को बुलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ और आपकी मौलूद पाक पढ़ता हूँ। लेकिन जो मेरे बगल में है, पड़ोसी है, ये काफिर मजाक उड़ाता है और इस मौलूद की मजलिस का उसने जो किया मुझे तकलीफ हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया तू घबरा मत, कल वो मुसलमान होकर तेरे घर आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल वो मुसलमान होकर तेरे घर आएगा। ख्वाब की बात थी। ये बुजुर्ग फरमाते हैं मैं रात को सोया, सुबह फजर के लिए उठा और जैसे मैं मुसल्ले से फरागत हासिल किया मेरे घर पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो वही मेरा पड़ोसी था। तो वो दाखिल होते ही पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने उससे सवाल किया कि क्या माजरा है, अब तक तो तू मजाक उड़ाता था मेरे दीन का और ये। तो उसने कहा कि कल की रात अजीब बात हुई कि कल मैं सोया तो एक घोड़े पर सवार नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए और इतने हसीन और जमील थे कि उनके दांतों से चमक निकल रही थी और वो जब चलते थे तो वखार उनके साथ चलता था और खड़े हो जाते तो पूरी इज्जत उनके साथ खड़ी हो जाती और वो उठे और बैठे तो खुशबुएं उनके साथ। ये सारी चीजें मैं देख करके बढ़ गया उनके पास और मैंने सोचा कि उनका हाथ चूम लूं। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और कहा तू मेरे दीन पर नहीं है और मेरा हाथ कैसे छू सकता है? मैंने पूछा आपका दीन क्या है? तो उस बुजुर्ग ने रूहानी नूरानी जो शख्सियत आए थे उन्होंने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने ख्वाब में ही उनको देखा और पढ़ा और उसके बाद मैंने मुसाफा भी किया और फिर मैंने पूछा कि क्या मेरी नजात होगी इस बात पर? तो उन्होंने कहा हाँ तेरे लिए मेरा हाथ चूमना यही नजात का जरिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने ये अलामत भी पूछी। अब मुझे ये बताएं कोई अलामत है कि मेरी नजात हुई कि नहीं हुई? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे ख्वाब में ही ये इरशाद फरमाया तू एक दिन से ज्यादा इस दुनिया में अब रहने वाला नहीं, इसलिए कि अब जिंदगी में आखिर वक्त तुझे ये दीन दिया गया और सारे गुनाहों से पाक करके अल्लाह तुझे उठाएगा। अभी ये बातचीत चल रही थी कि दरवाजे पर दो लोग और आ गए।
उसकी बेटी और उसकी बीवी वो पीछे से आए और वो भी कलमा तैयबा पढ़ते हुए आए। तो इसने कहा मैं तो छुप करके आया था कि बीवी को भी ना बताऊं, बेटी को भी ना बताऊं कि मैंने दीन बदल लिया है, मैं दूसरे दीन में आ चुका हूं, इस्लाम कबूल कर चुका हूं। ये कहां से कलमा पढ़ते हुए आई? उनसे पूछा गया तुम कैसे कलमा पढ़ रही हो? उन्होंने कहा जिस नूरानी बुजुर्ग को तुमने देखा हमने भी ख्वाब में देखा। वो आए हमारे पास और एक जन्नत की तरफ महल दिखाते हुए हमसे कहा क्या तुम इसमें दाखिल होना नहीं चाहती? तुम्हारा शोहर और तुम्हारा बाप इसमें जाने वाला है। हम दोनों ने कहा क्यों नहीं, हम भी जाएंगी। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा तो वही पढ़ो जो तुम्हारे बाप ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हमने वो पढ़ लिया और हमने भी पूछा अलामत क्या है हमारी, क्या आप जो कह रहे हैं वो हकीकत है? फरमाया जिस दिन तेरे बाप का इंतकाल होगा शोहर का, उसके दूसरे दिन और तीसरे दिन तुम्हारा भी इंतकाल होगा। ये अलामत बताई गई थी। शेख दारानी फरमाते हैं दूसरा दिन आया था, जो मेरा पड़ोसी जो पहले काफिर था आशिक रसूल हुआ, उसका इंतकाल हुआ और जनाजा भी बड़ी शान के साथ निकाला गया। दूसरे दिन उसकी बीवी का और तीसरे दिन उसकी बेटी का इंतकाल हुआ। ये तो रिवायत है। हजरत दारानी फरमाते हैं मुझे अंदाजा नहीं था कि एक महफिल मौलूद रखने पर इतनों को ईमान की दौलत मिलती है। ईमान तो मिला ही मिला, जियारत मुस्तफा से भी मुशर्रफ हुआ है। हाँ, ये सबसे बड़ी नेमत है अजीजा ने गिरामी। इसीलिए मैं कहता हूँ वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हम जो मौलूद पाक की महफिल मुनाकिद करते हैं, हमारी भी तमन्ना यही होती है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब यहाँ पर मौलूद मुबारका की महफिल जिन लोगों ने रखी वो बुजुर्गों ने रिवायात बयान की। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिसीन में से, जो हिंदुस्तान में इल्म हदीस को सबसे पहले फैलाया जिन्होंने, वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी हैं। फरमाते हैं मैंने मक्का मुकर्रमा में देखा है, मक्का मुकर्रमा में एक बार मैं एक महफिल में दाखिल हुआ जहां अरब लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल कर रहे थे, मौलूद की महफिल कर रहे थे। तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। तो थोड़ी देर के बाद मेरा पूरा जिस्म गर्म हो गया। वो कहते हैं महफिल में मैं बैठा था, अचानक मैंने देखा कि छत और पूरी सारी चीजें रोशनी से भर गई हैं। हज़रत शाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं जागते हुए देख रहा हूं कि सोते हुए देख रहा हूं, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि ये रोशनी और ये छत के ऊपर से सब नजर आना, ये दर हकीकत अल्लाह के वो मलाइका का नुज़ूल था जो उस महफिल को घेरे हुए थे। और शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब जब मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल मुनाकिद की जाती है, अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते हैं जो आसमान से जमीन पर आते हैं और उस पूरी महफिल को अपने नूरानी परों से ढांक लेते हैं, पूरी महफिल को वो ढांक लेते हैं। और ये बात बईद नहीं कि आज हमारी महफिल पर भी फरिश्ते अपने परों से साया किए हुए हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत की बात है और नसीब की बात है, लेकिन जिनको तकलीफ है, जिनको दर्द है, वो दर्द में ही रहेंगे, तकलीफ में ही रहेंगे और दर्द में ही रहेंगे। वो जिंदगी भर दलील पूछते रह जाएंगे और सुन्नी मेरे मुस्तफा के कदमों में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ, अगर मनाया भी है मौलूद की महफिल तो हमसे ये तो नहीं है कि कोई गुनाह कर रहा है। मुझे बताओ कि मस्जिद में बैठकर कोई गुनाह कर रहा है, यहाँ कोई गाना गा रहा है, यहाँ कोई गैर शरई काम हो रहा है? मौलूद की महफिल है और जिक्र मुस्तफा का हुआ करता है। इस महफिल को बिदात कहना, शिरक कहना, कुफ्र कहना, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे ऐसे हमने लोगों को देखा है जो बरसाती कीड़ों की तरह इसी मौसम में बाहर निकलते हैं। मौलूद की महफिल, ये मीलाद का महीना आया तो कीड़ों की तरह निकल आए बाहर और सोशल मीडिया पे पूरा गंद फैलाए रहते हैं। ये तमाम चीजें मौलूद के खिलाफ, जुलूस ईद मीलाद के खिलाफ, ये तमाम बातें फैला करके रखते हैं। ये कहां से साबित है, वो कहां से साबित है? मेरे अजीजों,
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए भी कहीं से तुम्हें कोई सबूत की जरूरत है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अंदाज हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं। कोई जिस्म के एतबार से, कोई रूह के एतबार से, कोई अपने माल के एतबार से हुजूर की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कभी किसी ने सवाल किया कि हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था जंग के मौके पर कि जिसके पास जो माल है वो ले आए, अल्लाह की राह में खैरात करे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल तो ले आए, अपने बदन के कपड़े भी उतार के दे दिया, और जिस्म पर क्या रखा, टाट का कपड़ा, और बटन भी नहीं थे, बबूल के कांटे लगाए थे। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया था, सबको पता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके माल को कबूल किया और पूछा, अबू बकर क्या लाया और क्या छोड़ा है? कहा सब ले आया हूं, सब ले आया हूं, जो कुछ था घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ाया। अब मैं यहाँ पर यह वाकया इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, मोहब्बत करने वाले उस मुहिब और आशिक सादिक से किसी ने आज तक ये नहीं सवाल किया, अबू बकर क्या कुरान में आया था कि कपड़े भी उतार कर देना है? क्या कुरान में ये बात आई थी कि बबूल के कांटे लगा करके कपड़े पहनना है? उस आशिक सादिक की रूह तुम्हें जवाब देगी, नादान, इस मोहब्बत में कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तू तो कह रहा है बदन के कपड़े निकालने की, अगर मुस्तफा फरमाए तो जिस्म की चमड़ी भी निकाल देंगे। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना हो तो मोहब्बत के तकाजे अलग अलग है, अंदाज अलग है आशिकों के। जो जिस अंदाज से हुजूर की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करता है, कोई चिराग जला के करता है, कोई लड्डू तकसीम करके करता है, तो मोहब्बत में कर रहा है, मोहब्बत में कर रहा है। मिठाइयां अगर किसी को तकसीम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? उसे मोहब्बत है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ इनका सड़ा हुआ बादशाह कभी किसी हॉस्पिटल से निकल भी आए तो सारे लोगों को ये भी केक तकसीम करते हैं। हाँ, ये सब चीजें पूछी नहीं जाती कि ये कहां से साबित है। खुशियां तो तुम्हें भी होती हैं जब कभी तुम्हारा नेता और तुम्हारा कायद से बीमारी से सही होकर के आए, तो खुशियां तुम्हें भी होती हैं। जुलूस तुम भी निकालते हो, हमें पता है, जुलूस तुम भी निकालते हो, लेकिन किसकी? दुनियादारों की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम सुन्नियों की किस्मत में ये रखा कि निकाले भी जुलूस तो सिर्फ मुस्तफा का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का परचम हम लहराते हैं। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा। हाँ, बस हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। अजीजान गिरामी औकात, बात यह है कि जो चीजों पर तुम मलामत, जिन चीजों पर तुम मलामत करते हो वो चीजें तुम भी करते हो। फर्क इतना है कि तुम गैरों के लिए करते हो और हम अपने नबी के लिए करते हैं। जुलूस भी होता है, दावत भी होती है, मिठाई भी तकसीम होती है, जलसा भी होता है, कॉन्फ्रेंस भी होती है, इज्तिमा भी होता है, चिल्ला भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन फर्क यह है कि तुम दुनिया के एतबार से करते हो और हमारा मकमह नजर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए है। तो बहरहाल मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें इस तरह के सवालात गर्दिश करते हैं। अभी किसी ने मुझसे सवाल किया, आज शामी की बात, बड़ी दूर की कोड़ियां लेके आते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में 12 महीनों का जिक्र किया। इन्ना इद्दतल्लाहि इंद 12 शहरन, तो कुरान पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है। महीनों की तादाद 12, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और एक साहब उसको बड़े तमतराक अंदाज में बयान कर रहे हैं। देखो, अल्लाह ने जो हुर्मत वाले महीने हैं वो कौन से? रजब है, जिलकादा है, जिलहिज्जा है और मुहर्रम है। ये 4 महीनों को अल्लाह ने हुर्मत वाले महीने कहा। तो इसमें तो रबीउल अव्वल का जिक्र आया नहीं, रबीउल अव्वल का जिक्र तो आया ही नहीं। तो क्या अल्लाह को ये नहीं मालूम था कि ये रबीउल अव्वल भी अफजल है? वो सवाल हमसे कर रहे हैं। आप लोग इसको इतना अफजल बना दिए हो, इसको इतना अफजल कह रहे हो। मेरे अजीजों, जवाब तो पहले ये बनता है कि उसमें तो रमजान का भी जिक्र नहीं आया।
پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا بھی نہیں. 4 حرمت والے مہینے جو قرآن میں بیان کیے گئے اس میں رمضان کا بھی ذکر نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے رمضان پورا تو دور کی بات، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو وہ حرمت والے مہینوں میں ربیع الاول کا نہ آنا اس کی فضیلت کو کم نہیں کرتا. ان ظالموں کو یہ پتا نہیں یہ حرمت کا مطلب کیا ہے. میاں یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال کرنا حرام ہے، اور یہ لا کر فٹ کر رہے ہیں سنیوں پر، اور کہتے ہیں اس میں میلاد کا ذکر ہی نہیں ہے. 4 مہینے کی ہوئی تو آگے عرض کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک در حقیقت ہم بیان کرتے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم حضور کی عزت کو بڑھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان بات کوئی اور بلند کر سکے گا؟ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بہت بلند کر دی، لیکن ہم جو بیان کرتے ہیں در حقیقت ہماری خود کی شان بڑھ جاتی ہے. جو نبی کی شان بیان کرتا ہے اس کی خود کی شان بڑھ جاتی. آپ کر کے تو دیکھو، جب جب آپ میرے نبی کی بات کرو گے لوگ آپ کی عزت بھی کرنا شروع کریں گے. آپ نے دیکھا نعت پاک حضور کی پڑھی جا رہی ہے، لیکن آپ پڑھنے والے کو پیچھے نہیں کھڑا کرتے، ممبر کے پاس کھڑا کرتے ہیں. ادھر آؤ میرے مصطفیٰ کی شان گنگناؤ. حضور کی حدیث بیان کرنا ہے تو آپ نیچے نہیں بٹھاتے، آپ کرسی پر بیٹھے اور حضور کی بات کریں. یہ عزت کس بنیاد پر مل رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو. آج تک ہماری محفلوں میں کچھ عاشق زندہ ہیں، ان کو وصال کیے ہوئے صدیاں گزر گئی، اعلیٰ حضرت آج بھی ہمارے درمیان. نعرہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ عشق محبت اعلیٰ حضرت. کیوں یہ نعرہ لگاتے ہیں؟ کیا وہ کسی پٹھان خاندان کے تھے اس لیے؟ بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے؟ کیوں ہم آج تک 100 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کے انتقال کو، ہر محفل میں نعرہ امام احمد رضا کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کا کیوں نعرہ بار بار لگایا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے صرف قلم اٹھایا تو یوں کہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. یہ اعلیٰ حضرت نے جب میرے مصطفیٰ کریم کی شان بیان کی، پوری زندگی بھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا، اور عظمت رسالت پر ہی لکھتے رہے. تو 100 سال گزرنے کے بعد بھی اس امام احمد رضا کو اللہ نے ہماری محفلوں میں ابھی بھی زندہ رکھا ہے. اب آپ اندازہ کریں میلاد کس کی ہو رہی ہے؟ حضور پاک کی، لیکن ذکر ساتھ میں ان غلاموں کا بھی آتا ہے
میرے آقا کی یہ عنایتیں ہیں کہ جب رسول پاک کی محفل ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عنایتیں ہیں کہ ان کے سچے غلاموں کا ذکر میرے آقا اپنی محفل میں کروا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں سینکڑوں اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کیا اور آج بھی ہماری محفلوں میں وہ زندہ ہیں۔ کیا آج ہماری محفلوں میں یہ نہیں پڑھا جاتا تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ؟ یہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عاشق صادق فنا فی الرسول تھے، حضور کی بارگاہ میں ایسی محبت کرنے والے جامی کہ ان کے ایک ایک اشعار سے، جیسے اعلیٰ حضرت کی اردو اشعار سمجھ میں آتے ہیں، فارسی اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو علامہ جامی کے اشعار پڑھتے وہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، میرا بدن یا رسول اللہ ٹکڑے ہو چکا ہے، پرانا ہو گیا اور میری جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ زہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ سے دوری کی وجہ سے، آپ سے جدائی کی وجہ سے میری جان ٹکڑوں میں ہو گئی، میرا جسم پارا ہو گیا ہے۔ دلم پشمردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ، میرا دل مرجھا رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ کے رسول چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ التجا کرتے ہیں علامہ جامی کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے دونوں بازو شفاعت کے کشادہ کریں گے گنہگاروں کے لیے، اے اللہ کے نبی جامی کو اس دن آپ فراموش نہ فرمانا، مجھے دور نہ کر دینا۔ عزیزان گرامی، نعت کہنے والا جب حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن علامہ جامی کا حال کچھ اور ہی تھا۔ یہ جب حج پہ جا رہے تھے تب انہوں نے نعت لکھی تھی، حج پہ جا رہے تھے تب نعت لکھی تھی، اور دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے مدینے جا کر حضور کو سناؤں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے پاس کھڑے ہو کر کے سناؤں گا۔ حج کر کے جب مدینے جانے کا وقت آیا، بڑا عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ کے جو حاکم تھے، جو گورنر تھے شریف مکہ، ان کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور کہا کل ایک شخص عبد الرحمن جامی نام کا مدینے آنے والا ہے، اسے روک لینا، مدینے آنے نہ دینا، مدینے آنے نہ دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا۔ حاکم وقت جو مکہ کے گورنر تھے شریف مکہ، انہوں نے مدینے کے قافلے میں تلاش کیا تو مل گئے۔ پوچھا عبد الرحمن جامی وہ کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے۔ کہا ہاں آپ نہیں جا سکتے، باقی پورا قافلہ جا سکتا ہے۔ جب قافلہ نکلا تو ایک عاشق صادق کے لیے مدینہ کا راستہ روکنا یہ تو بڑا مشقت والا معاملہ ہے، بڑی امتحان کی گھڑی ہے۔ علامہ جامی رونے لگ گئے کہ میری کیا خطا تھی، رات بھر سو نہیں سکے، اور جب انہیں پتا چلا کہ حاکم اور گورنر نے روک دیا، اب جانے کا کوئی دوسرا راستہ دیکھنا ہوگا، پہرے لگا دیے جا چکے تھے کہ یہ شخص اگر مدینے گزرے گا تو جانے نہیں دینا، سپاہی بھی کھڑے ہو گئے۔ تو علامہ عبد الرحمن جامی دوسرے دن جو اونٹوں کے مالک ہوتے، قافلے میں جانے والے، ساز و سامان لاد کر کے ایک اونٹ کے مالک کے پاس جا کر اسے کافی رقم دی اور کہا تیرے جو ساز و سامان تھیلے ہیں اس کے اندر مجھے ڈال کر کے تھیلا سل دے اور ساز و سامان کے ساتھ مجھے مدینے لے جا، پہنچوں گا تو جو تو چاہے گا وہ ساری چیزیں میں تجھے دوں گا۔ وہ تیار ہوا، پیسے بھی لیا، ایک تھیلے میں ان کو سل دیا اور ساز و سامان کے ساتھ اونٹ کے اوپر ڈال دیا۔ دوسرا دن تھا یہ، وہ حاکم مکہ شریف مکہ ان کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن جامی آج پھر مدینے آ رہا ہے، فلاں اونٹ پر فلاں ساز و سامان کے اندر وہ اپنے آپ کو سل کر کے آ رہا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، حضور پاک سے کون سی چیز چھپی ہے۔ جب حاکم مکہ کو یہ خبر ملی تو آیا تلاشتے ہوئے، اس اونٹ کی نشانی جو بتائی گئی تھی خواب میں وہیں آ کر ساز و سامان کی تلاشی لی تو عبد الرحمن جامی ایک تھیلے میں مل گئے۔ اب غصہ تھا حاکم مکہ کو، شریف مکہ کو، اٹھایا اور لے جا کر کے سیدھے جیل میں بند کر دیا۔ کہا تم نے میری نافرمانی کی ہے اور حکم عدولی کی ہے، اب تمہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں،
जेल में बंद कर दिया। हाकिम मक्का को भी नहीं मालूम था कि क्यों रोका जा रहा है, और अल्लामा जामी को भी नहीं मालूम था कि क्यों रोका जा रहा है, ये तो मुस्तफा ही जाने। जब दूसरे दिन जेल में बंद कर दिया गया तो अब्दुर्रहमान जामी टूट फूट गए, रोने लग गए, ज़ारो कतार आंसू बहाने लग गए। रात का वक्त था, शरीफ मक्का हाकिम मक्का के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, पूछा क्या कर दिया तूने जामी के साथ? कहा उसको तो जेल में बंद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया वो जेल में बंद करने वाला नहीं है, बंद किया जाने वाला नहीं है। कहा कि या रसूल अल्लाह वो नाफरमानी करने वाला था, और अगर आपको तकलीफ थी उससे तो मैं कैसे उसे मदीने आने देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बात तकलीफ की नहीं, अब्दुर्रहमान जामी ने एक नात लिखी है, एक नात लिखी है, और उसने ये तय किया है कि वो सीधे आकर मदीने में मेरे रोजे के सामने तिलावत करेगा, मुझे सुनाएगा। ऐ शरीफ मक्का हाकिम मक्का, अगर अब्दुर्रहमान जामी मेरी कब्र के पास वो नात पढ़ेगा तो मुझे कब्र से बाहर आना पड़ जाएगा, मुझे मेरी कब्र से बाहर आना पड़ जाएगा। और ये फितरत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ने एक बार आंखों से ओझल कर दिया और हम मौत के बाद आलम बरज़ख में चले गए तो आलम बेदारी में सबके लिए तो अलग बात है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो आ भी सकते हैं, अल्लाह ने उनको तसर्रुफ दिया। ये बात जब हाकिम मक्का को पता चली तो दौड़े दौड़े गया जेल की सलाखों के पास, ताला खोला और उनको इज्जत के साथ बाहर लाया और कहा मैं आपका मकाम नहीं जानता था, मुझे ये बताया गया कि आपने कोई नात लिखी है। कहाँ लिखी तो है, तुझे कैसे पता? कहा मुझे रसूलुल्लाह ने बताया। इतना सुनना था कि अब्दुर्रहमान जामी चीख मार करके गश खाकर गिर पड़े। कहा कि मैं जिसको दूर से पुकारता था वो तो मेरे बहुत करीब से सुनते हैं, बहुत करीब से सुनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी भी सुनते हैं जिसको बोलना नहीं आता, उसकी भी सुनते हैं जिसको बोलना नहीं आता। वो लकड़ी की भी सुनते हैं, हिरन की भी सुनते हैं, वो जानवरों की बोलियां सुनते हैं, तो उम्मत की बोली क्यों नहीं सुनेंगे। अब्दुर्रहमान जामी जब होश में आए तो उनसे हाकिम मक्का ने कहा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने ये नात रोज़े पाक पर पढ़ी तो हुजूर पाक कब्र से बाहर आना होगा हुजूर को, इसलिए मेरे आका ने मना फरमाया। अब्दुर्रहमान जामी ने कहा इतना ही क्या कम है कि मेरी खबर हुजूर तक पहुंच गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मेरे अशार पहुंच गए, ये क्या कम है। सफर तो किया, वो नात वहां रोजे के पास नहीं तिलावत की। इससे पता चलता है कि जब एक आशिक सादिक की जुबान से कुछ अल्फाज निकलते हैं वो सीधे दरबारे रिसालत में पहुंच जाते हैं। वही नाते पाक है, तनम फरसूदा जहां पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवाराज ऐसियां या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिराम वक़ार, हुजूर की जो बात करता है वो हमेशा महफिलों में जिंदा रहता है, वो महफिलों में जिंदा रहता है, वो कब्र में भी जा चुका होता है। क्या आज 800 साल के बाद भी सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हमारे दरमियान जिंदा नहीं है? आज भी हर सुन्नी कहता है हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, ये नारे हैं, हर बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। उनको सुल्तानुल हिंद कहा गया, गरीब नवाज कहा गया, और आज तक लोगों पर वो हुकूमत कर रहे हैं। इसीलिए वो क्या ही बेहतर बात है, एक अंग्रेज ने जो लिखा है, कहा है, जो यहाँ पर टूर पर आया था और अपनी तारीख लिखा, सफरनामा लिखा, तो कहा हिंदुस्तान में बड़े बड़े अजूबे हैं, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, सारे बड़े बड़े अजूबे मैंने देखे, लेकिन एक बहुत बड़ा अजूबा जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा मुतासिर किया वो ये है कि अजमेर की धरती पर एक कब्र है जो करोड़ों पर हुकूमत करती है। कब्र है लेकिन सारे लोगों पर हुकूमत करती है। बच्चा क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई वहां पर अपना दामन फैलाता है। 800 साल के बाद भी आज तक नाम लेवा है। किस बुनियाद पर? इसलिए कि वो अताए रसूल है, रसूल पाक की जिंदगी पर वफादारी की अल्लाह ने आज तक महफिलों में जिंदा रखा। मेरे अजीजों, बात में जो कह रहा हूं वो ये है कि हम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ बयान करते हैं वो दर हकीकत हमारी अपनी शान बुलंद की जाती है।
आप अगर ये तय कर लें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई करनी है, यहाँ तक कि फरमाया गया जो जुबान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ती है, जो जुबान, अल्लाह के फरिश्ते उस जुबान के लिए दुआ करते हैं। और जब वो क़यामत के दिन उठाया जाएगा और कब्र में भी जब फरिश्ते उसके पास आएंगे तो जिस बात की उसे आदत होती है वो आदत के साथ ही कब्र में उठता है। यहाँ पर जो बड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, आदत होती है कुछ लोगों को, कुछ को गाली देने की बात पर, तो जब कब्र में मुर्दे को उठाया जाता है, जिस बात की उसे आदत थी दुनिया में, उसी आदत के साथ वो कब्र में उठता है, उसी आदत के साथ उठता है। काश हम सब की आदत ही होती, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमजदों को मुजदा दीजिए कि है रजा, बेकसों का सहारा हमारा। जब ये जुबान जद हो जाए, हर एक बच्चे के जुबान पर आने लगे, तो फरिश्ते अगर कब्र में उठाएं, उठ जा, और तुम ये कहते वो उठे सबसे औला वो आला हमारा नबी, फरिश्ते ये कहेंगे अभी तीसरा सवाल हमें पूछना था, ये पहले ही जवाब दे रहा। तीसरा सवाल है ना कि इनके बारे में तू क्या कहता है। पहला सवाल तो है तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल ये है कि तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल हुजूर के बारे में कहा जाता है इनके बारे में तू क्या कहता था। ये मुर्दा तो अजीब है, उठते ही पहले बार में तीसरा जवाब दे रहा है, तीसरे सवाल का जवाब दे रहा है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा। हाँ, फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने ये तालीम दी है, अगर नबी की बात किया है तो दीन भी नबी है और खुदा तक पहुंचाने वाला भी नबी। दीन क्या है तुम्हारा, बमुस्तफा रसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को रसूल के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। और रब तबारक व ताला की जात को कौन पहुंचा सकता है, अल्लाह ताला तक कौन पहुंचा सकता है, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर की वारगाह में अगर नहीं पहुंचा तो वहां पर भी कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों सवाल का जवाब एक जात से मुंसलिक है, मुस्तफा करीम की मोहब्बत। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बात ये चल रही थी कि आपको अगर आदत हो नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मेरे आका के तारीफ करने की, तो वो जुबान कभी भी बोसीदा नहीं होती, वो जुबान कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वालों के लिए और नात पढ़ने वालों के लिए बुजुर्गों ने ये तक फरमाया कि उसका कफन भी मैला नहीं होता। अल्लाह तबारक ताला कफन को भी पाक रखता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐब ढूंढने वाले लोग मौजूद हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तनकीस करने वाले, नुक्ता ढूंढने वाले कि तुम सब ये बात कहां से कहते हो कि हुजूर को इल्म गैब था। आज एक जवान अमेरिका से कहता है कि यहाँ सारे मेरे ऊपर, अभी अभी गया, 1 महीना हुआ, कहता है सारे लोग मेरे से मुनाजरा करते हैं कि इल्म गैब कहाँ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सारे मामलात वो जो बयान किए जाते हैं तुम्हारे सुन्नियों के, हाँ ये कहां से साबित है। दिमाग खराब करके रखा जाता है, तुम हुजूर के इल्म के पीछे पड़े हो। और दूसरी बात यह है, सुन्नी ये कहते हैं कि हुजूर हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं, ये कहां से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर भी हैं नाजिर भी, ये कहां से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशर हैं कि नूर हैं, हम तो नूरी बशर कहते हैं और हुजूर को नूर भी मानते हैं बशर भी मानते हैं। तो कुछ लोगों को तकलीफ इसी बात की है कि नहीं वो नूर नहीं है, वो हाजिर और नाजिर नहीं है, उनको गैब का इल्म नहीं है। इसको पीर नसीरुद्दीन साहब ने एक बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, हाजिर नाजिर नूर गैब बशर को छोड़, हाजिर नाजिर नूर बशर गैब को छोड़, शुक्र कर कि वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। ये भी क्या कम है, शुक्र कर कि वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। मेरे रसूल पाक की बरकत है कि तेरे गुनाहों को अल्लाह नहीं खोलता, वरना अगर
गुनाह ऐसे हैं कि आसमान फट जाए और पत्थरों की बारिश हो। क्या हमारे मजमू में आज वो गुनाह नहीं है जो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में होते, जो लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में होते थे, जो शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में नाप तोल की कमी करने वाले थे, अजाब आया? क्या आज नहीं है? लिवातत करने वाले नहीं है, जिना करने वाले नहीं है, चोरी करने वाले नहीं, सब है। अजाब वैसा नहीं आता जैसा पिछली उम्मतों पर आया करता। वजह यह है कि अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह इस उम्मत पर वैसा अजाब नहीं नाजिल करेगा इसलिए कि इनके दरमियान मेरा महबूब आराम कर रहा है। तो उनकी बदौलत तो हम बचे हुए हैं, और फिर उन्हीं की जात पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, छोड़ो इनको, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हमें ऐसे मजहब और ऐसे दीन की जरूरत नहीं जिसमें हुजूर की ताजीम को भी शिर्क कहा जाता है। अजीजान इकराम वक़ार, चंद बातें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक है वो अर्ज करता हूं कि हाजिर और नाजिर हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह अकीदा है हमारा। हाजिर का मतलब मौजूद, नाजिर का मतलब देखने वाला, हाजिर का मतलब मौजूद और नाजिर का मतलब देखने वाला। ये मैं कुरान से साबित करता हूं, कुरान पाक से। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये सब बरेलवियों के फैलाए हुए हैं, मौलवियों के, कुरान तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। और उसमें मौला करीम ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको शाहिद बनाया। शाहिद कहते हैं गवाह को, शाहिद किसको कहते हैं? गवाह को। ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाया, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाया। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और आपको रोशन चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा। सिराजन मुनीरा, चमकने वाला चिराग। इसमें पूरी आयत पर जाएं तो काफी लंबा वक्त होगा, तफसीर होगी। सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं, अल्लाह फरमा रहा है हमने आपको गवाह बनाया है। एक जगह नहीं, 3 जगह आई ये बात है, 3 जगह आई है कि हमने आपको गवाह बनाया। हमने गवाह की ही मुतालिक देखा कि गवाह होता कौन है, गवाह किसको कहते हैं? गवाही देने वाला। अब मिसाल के तौर पर रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में गाड़ी ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, और आप में से कोई साहब हैं वो उठ करके आए और कोर्ट में गवाही देने के लिए आ गए कि हाँ यहाँ एक्सीडेंट जो हुआ है फला गाड़ी वाले ने फला घर वाले को मार दिया है। ठीक है, आप गवाह हैं, आप विटनेस बन करके आए हैं, आप साक्षी बन करके आए हैं। तो जज सबसे पहले आपसे ये सवाल करता है, आपने देखा, उस गवाह को क्या कहना होगा? हाँ मैंने देखा। इसीलिए तो आई विटनेस कहा जाता है ना, गवाह को आई वाला होना जरूरी है, विटनेस की आंख होना चाहिए, अंधा गवाह नहीं बन सकता। जज सबसे पहले पूछेगा ये हादसा होते हुए आपने देखा? अगर वो कहेगा नहीं देखा नहीं सुना है, तो जज कहेगा सुनते रहो घर में। यहां जो अदालत है यहां किसकी बात की चलेगी? देखा हो, देखने वाले की चलेगी। अच्छा, एक चीज गवाह के लिए देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। दूसरा सवाल जज ये करेगा, क्या तुम वहां मौजूद थे जब यह हादसा हो रहा था? तब तुम वहां मौजूद थे? अगर गवाह कहे नहीं मैं तो नहीं था, टीवी में देखा है, तो फिर वो जो गवाही एक्सेप्ट है, कबूल की जाएगी? नहीं, हादसा होने के वक्त वहां पर होना जरूरी। गवाह के लिए 2 चीजें जरूरी है, देखना भी जरूरी है और मौजूद होना भी। अब सुनिए, कुरान की एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको गवाह बनाया। किस बात पर गवाह बनाया? किस बात पर गवाह बनाया? तो ये कुरान की आयत ही है, जब कयामत के दिन
क़यामत के दिन सारी उम्मतों को खड़ा किया जाएगा। पिछली उम्मतें अपने नबियों का इनकार कर देंगी, कहेंगी ये हमारे पास आए ही नहीं थे, ये हमारे पास आए ही नहीं थे। सारे अंबिया कह रहे होंगे नहीं है अल्लाह, हम गए थे, हमने इनको दावत दी। उम्मती कह रहे नहीं आए थे, तो रब तबारक व तआला गवाह के तौर पर मेरे आका को बुलाएगा। कुरान की आयत है, रसूल पाक को बुलाया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं। रसूल पाक फरमाते हैं ये अंबिया आए भी थे, दावत भी दिए थे, इन्होंने झूठ कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मत के बारे में बताएंगे कि क्या ये नबी फला वक्त नहीं आए थे, क्या फला दावत तुम्हें नहीं दी थी। तब हुजूर की बात पर वो सारे उम्मती पूछेंगे आपने कैसे गवाही दी, आपने कैसे गवाही दी। तब मेरे आका फरमाते हैं रब तबारक व तआला ने मुझे हाजिर व नाजिर बनाया। ये हो गई हाजिर व नाजिर बनाया। वो पिछलों को भी देखा करते थे और अगलों को भी देखा करते थे। गवाह के लिए देखने वाला भी जरूरी है और वहां पर मौजूद होना भी जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक सिर्फ पिछली उम्मतों का ही नहीं, जब इस उम्मत का भी मामला आएगा तब भी रसूल पाक अपनी उम्मत के लिए भी वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, कुरान कहता है और रसूल को तुम सब पर हमने गवाह बनाया है। कयामत के दिन कोई भी इधर उधर करेगा तो गवाही देने के लिए मेरे आका तशरीफ लाएंगे। 1400 साल बाद वाले जो इधर उधर चींपी कर रहे हैं इनकी भी गवाही हुजूर ही देंगे। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और इनके मुतालिक फरमाएंगे अगर ये कहेगा आप तो नहीं थे 1400 साल पहले चले गए थे, तब जवाब अल्लाह की तरफ से ही दिया जाएगा तुझको किसने कहा कि वो चले गए थे, तुझको किसने कहा चले गए थे। हकीकी बात तो ये है जो बरेली के इमाम ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका देते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुतालिक भी यही कहा जाता है। जो लोग ये कहते हैं ना 12 रबीउल अव्वल को ही उनकी वफात हुई थी, तुम लोग इतना बड़ा जश्न मनाते हैं, ये धोखा देने वाली चीजें हैं। शैतान अलग अलग ड्रेस पहन करके आता है, अलग अलग लिबास में आता है और हर मौसम में हर साल नया नया एक नुक्ता उनको सिखा कर लाता है। टीचर भी जाहिर सी बात है बहुत बड़ा इल्म वाला था पहले। ये जो इब्लीस टीचर है ये पहले बहुत इल्म वाला था, लेकिन अब सारा इल्म उसका सिर्फ गुस्ताखी रसूल पर खर्च होता है। इसीलिए हुजूर की अदावत गुमराही कुफ्र की तरफ ले जाती है। तो ये जितने भी शागिर्द हैं उस टीचर के हर साल एक उनसे नुक्ता सीख कर आते हैं और कहते हैं उस दिन ही उनकी वफात भी हुई थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई थी, वफात भी हुई थी। पहली बात तो ये सही हदीसों से साबित नहीं कर पाएंगे, वफात के लिए तो ये एग्री हैं, विलादत के लिए तैयार नहीं है, वफात के लिए। और बाज लोग कहते हैं नहीं देखो किताबों में 8 रबीउल अव्वल लिखा है, हुजूर की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई थी, तुम 12 को मनाते हैं। चलो हम कहते हैं 8 को ही तुम ही मना लो, हम भी आ जाएंगे उस जुलूस में और हम 12 को भी आएंगे। धोखा देते हैं लोगों को, 8 को है किताबों में तो 8 को लिखा गया, तुम 12 को, तो 8 को अब तक छुट्टी क्यों नहीं हुई, आप मना लेते। मेरे अजीजों, ये दुश्मनी, ये अदावत मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही है जैसे एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा नहीं। हुजूर ने फरमाया सदक़त या अबू बकर, ऐ अबू बकर तूने बहुत सच कहा। थोड़ी देर के बाद अबू जहल आया और कहा आपसे ज्यादा बुरा मैंने किसी को नहीं देखा। हुजूर के बारे में उसने कहा आपसे ज्यादा बुरा मैंने किसी को नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया तूने सच कहा अबू जहल। साहबा ने पूछा दोनों सच कैसे कह सकते हैं? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे आईना बनाया, अल्लाह ने मुझे आईना बनाया। अबू बकर ने अपनी शक्ल देखी और तारीफ की।
अबू जहल ने अपनी शक्ल देखी और अपनी बुराई की। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अगर हुजूर की मिलाद मनाते हैं तो हुजूर के उस आईने में अपनी किस्मत देखते हैं, अपनी किस्मत देखते हैं, और जो कीड़े निकालते हैं वो अपनी किस्मत देख रहे हैं, अपनी किस्मत देख रहे हैं। यहाँ भी कीड़े, कब्र में भी कीड़े, हशर में भी कीड़े और जहन्नम में भी कीड़े। अजीज़ान गिरामी औक़ात, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक अदना सी भी अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करता है, इसीलिए कहा मुर्शिद बराक ने, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हकीकत तो यह है कि अल्लाह ताला ने उस कौम पर बड़ा एहसान किया जिनको हुजूर का फर्मा बरदार बनाया, हुजूर की मोहब्बत करने वाला और हुजूर की तारीफ सुनने वाला बनाया। और जिसके दिल में तकलीफ होती है, अल्लाह हमें उन जमातों से महफूज रखे, उन जमातों से महफूज है कि हम कुरान भी उठाते हैं तो ये कहते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों में मेरे मुस्तफा की शान बयान की है, कभी वद्दुहा कहकर, कभी वल्लैली कहकर, कभी वमा रमैत इज़ रमैत कहकर, कभी ला उक़सिमु बिहादल बलद कहकर, कभी अलम नशरह लक सदरक कहकर, कभी कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस समा कहकर। ये आयतें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में तो आई। मैंने खुतबे से पहले भी जो तुम्हारे सामने तिलावत किया आयत, ये भी मेरे मुस्तफा की पूरी शान है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। नूर से मुराद हुजूर की जात है और किताब से मुराद कुरान पाक है। दो चीजों का जिक्र कुरान में आया, दो चीजों का जिक्र कुरान में आया, और ये कुरान 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 कहते हैं और अल्लाह की किताब में ये कहाँ है, अल्लाह की किताब में वो कहाँ है। मैं उनका आज तरीका बताता हूँ। ऐ लोगों, आप सबको मालूम होना चाहिए, लाइट पूरी बंद करता हूं और किताब पढ़ के दिखाओ। किताब पढ़ के दिखाओगे? किताब पढ़ के दिखा सकते हैं? नहीं, किताब पढ़ने के लिए रोशनी जरूरी है। और आयत में तरतीब भी देखें, अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास पहले नूर आया फिर किताब आई। उजाला पहले करो, किताब बाद में खोलो। और ये हुजूर की रोशनी को बंद करके किताब उठा करके पढ़ रहे हैं। इसीलिए एक शायर ने कहा था, बेइश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, बेइश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। हुजूर की मोहब्बत जरूरी है और उसी नूर से तुम किताबुल्लाह भी पढ़ सकते हो, हदीस रसूलुल्लाह भी पढ़ सकते हो। हाँ, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान ने क्या कहा? नूर है। क्या है? नूर है। और नूर का होना बहुत जरूरी है। बगैर नूर के हमारे यहाँ कुछ भी नहीं चलता। हमारी आंखों में भी नूर है, एक हल्का सा नूर, और अगर ये कतरा जो नूर का हमारे आंखों में ना होता तो पूरी कायनात में सफेद क्या है, काला क्या है, हमें कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह से आंखों के अंदर एक बहुत हल्का सा नूर है, वो तुम्हें पूरी दुनिया बताता है। तो हुजूर की जात पूरी कायनात को मुतारफ कराने के लिए आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहा है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु, तो फिर मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। तो रब ताला फरमाता है, तो फिर मैंने हबीब पाक को पैदा किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, अल ख़ल्क़ से मुराद यहाँ पर हदीस में हुजूर की जात है। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया और उनके जरिए से अल्लाह ने अपनी तारीफ पूरी दुनिया में फरमाई। सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचती है तो किसके जरिए से? रसूल पाक की। क्योंकि एक नहीं, कुरान की आयत है, एक बार अल्लाह ने सारी रूहों को दुनिया में भेजने से पहले एक मैदान में जमा किया, यौम अलस्त उसको कहते हैं। कुरान में 9वें पारे में इसका जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले जितने इंसान थे सबकी रूहों को जमा किया और अल्लाह ताला ने सारी रूहों से एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम। ये सवाल कुरान में है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं?
किससे पूछा था? रूहों से। हमारी से भी पूछा गया, आपकी रूहों से भी पूछा गया, नबी भी थे वहां, वली भी थे, सबकी रूहें थी। जब अल्लाह ताला ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो पूरी रूहें खामोश थी। सबसे पहले जवाब आता है रूह मोहम्मदी से, भला वो रब्बिना, क्यों नहीं मौला तू हमारा रब है। रसूल की रूह की आवाज पर फिर नबियों की रूहों ने पुकारा, नबियों की रूहों की आवाज पर वलियों की रूहों ने पुकारा, वलियों की रूहों की आवाज पर फिर मोमिनीन की रूहों ने पुकारा, फिर उसके बाद आम इंसानों ने पुकार कर कहा क्यों नहीं मौला तू ही हमारा रब है। तो रब को रब कहलवाने के लिए सबसे पहले जो जात का इंतखाब हुआ वो मेरे मुस्तफा की रूह है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह पाक है। यहां से मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूं, वही बात नहीं, ये तो यौम अलस्त की बात थी, यौम अलस्त की बात थी, जो रूहें अभी थी तब भी शान मुस्तफा की है, शान मुस्तफा की है। और दुनिया में जब अल्लाह ताला ने भेजा, तो अब यहां पर थोड़ा सा अंदाजा करें, आखिर जमाने में हुजूर को भेजा, सारे नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, आखिर में आए, और लोग कहते हैं जो सबसे पहले आए वो अफजल है और आखिर में आने वाला कैसे अफजल है। तो मेरे अजीजों, एक शेर के जरिए से इसकी तशरीह करता हूं। इकबाल का ये शेर याद आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात वही अव्वल वही आखिर, वही ताहा वही यासीन, वही कुरान वही फुरकान, वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में कहा वही अव्वल वही आखिर। ऐसा कैसे हो सकता है? वही अव्वल भी है वही आखिर भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हुजूर की जात ही अव्वल भी है, हुजूर की जात ही आखिर भी है। समझ में आ रही है बात? मीलाद की मजलिस है, समझ के उठो। बात ऐसी है कि हम जमीन में जाते हैं, किसानों से भी समझ सकते हैं इस मसले को। आप किसान के पास जाएं, पूछें जमीन में सबसे पहले आपने क्या बोया? कहा बीज बोया। बीज बोने के बाद क्या निकला? कोंपल निकली। कोंपल के बाद पौधा आया, पौधे के बाद फिर वो दरख्त बनता गया, दरख्त बनने के बाद फिर उसकी उम्र बढ़ती गई, शाखें आए, पत्ते आए, फिर उसके बाद दरख्त में फूल आए, फूल आने के बाद फिर फल आए, और फल के अंदर कौन सा बीज आया? जो बोया था वही बीज आया। पता चला ये बीज वही अव्वल है वही आखिर है, ये बीज वही अव्वल है वही आखिर है। मुस्तफा की जात हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात असल है। अब कोई ये नहीं कहेगा दरख्त असल है, पत्ते असल है, टहनी असल है, नहीं। बीज नहीं होता तो दरख्त भी नहीं होता, बीज नहीं होता तो दरख्त भी नहीं होता, पत्ते भी नहीं होते, टहनी भी नहीं होती। बीज ने ही सारे दरख्त को उगाया। अब दरख्त तो उग गया और फल आया नहीं तो भी कहा जाएगा दरख्त बेकार है, दरख्त बेकार है। इसी तरह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम आते रहे और हुजूर फरमाते हैं मेरी जात ऐसी ही है जैसे किसी ने पूरा महल बनाया और एक ईंट की जगह छोड़ दिया, पूरा महल बनाया और एक ईंट की जगह छोड़ दिया। आप बताओ ऐ लोगों, क्या वो महल मुकम्मल समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूं। मेरे आका ने खुद हदीस में फरमाया वो आखिरी ईंट मैं हूं, कि नबियों के आखिर में आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले को मुकम्मल फरमाया, वही अव्वल है वही आखिर है। अब मैं जो बात अर्ज कर रहा था यौम अलस्त से, वो यौम अलस्त के भी बादशाह और कायनात में आने के बाद चले आए तो हुजूर बहुत आखिर जमाने में, लेकिन जिक्र कहां से चल रहा है? आदम अलैहिस्सलाम से ही चल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम 360 साल तक रो रहे थे जन्नत से निकाले जाने पर, 360 साल तक रो रहे थे। आखिर में कुरान कहता फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, आदम को हमने एक कलमा सिखाया, एक कलमा सिखाया जिस कलमे की बदौलत हमने उनकी तौबा कबूल की। वो कलमा क्या था उस पर मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल है। बाज़ ने कहा वो रसूलुल्लाह की जात है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला था,
जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और बुजुर्गों ने ये भी लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल खुश हो गए और अल्लाह की बारगाह में फरमाए, अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जिसकी बदौलत 360 साल बाद तूने मेरी तौबा कबूल की, उस नूर को मुझे भी तो दिखा दे, मैं भी उसकी जियारत करूं। बाप खुद बेटे की जियारत की तमन्ना रखता है। आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनके नाखूनों पर नूर मुस्तफा दिया गया और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उन्होंने देखा तो चूम कर आंखों से लगा लिया। कहना यह है कि इंसान अव्वल की जुबान पर भी मुस्तफा की ही नात है। कायनात में अब आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी अगर कसीदा खानी हो रही है तो इसी आखिरी रसूल की बात हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, जंगों में जाते थे तो वहां मुशरिकीन और जो दुश्मन होते उन पर फतह पाने के लिए सारे मोमिनीन मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होते और दुआ करते, ऐ अल्लाह, जो आखिरी जमाने में तेरा नबी आने वाला है उस नबी की बरकत से हमें फतह अता फरमा। कुरान में इसका भी जिक्र है पहले पारे में। बात वहां नबियों की कौन सी, आदम अलैहिस्सलाम का चल रहा है जमाना, बात मुस्तफा की हो रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, आग में डाला जा रहा है। आग ने आपके बदन को तो दूर, लिबास को तक नहीं छुआ। आग में कई दिन तक आप रहे और वैसी बार आए। मुफस्सिरीन ने फरमाया वजह क्या थी, इसलिए कि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए मीना की वादी में हाथ पैर बांध दिया और गर्दन पर छुरी भी चलाई, नहीं चली, और आपने पत्थर पर मारा, पत्थर 2 टुकड़े हो गया। चाकू पत्थर को काट रही थी और नरम गले को नहीं काट रही थी। क्यों नहीं काटी? मुफस्सिरीन फरमाते इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा था। मेरे आका उन्हीं की औलाद में से नस्ल में है। ये नूर मुस्तफा के जलवे कहाँ कहाँ हैं? है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है सफीयुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है नजीयुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है कलीमुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है रूहुल्लाह को हाजत, हाँ, सबको हाजत है रसूलुल्लाह की। जब ये कायनात में जिक्र भी चल रहा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो नबी आते रहे। हजरत ईसा ने तो यहाँ तक कहा अपने हवारियीन को जमा करके और कहा मैं असल नहीं हूँ, मैं असल नहीं हूँ, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कुरान पाक में जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि वो आएंगे, यहाँ तक कि आप इंजील और तौरात और ज़बूर उठाएंगे तो पुरानी किताबों में सिर्फ आने का जिक्र नहीं कहा गया, बल्कि उनके बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, ये भी लिखा गया। वो चलेंगे तो किस अंदाज से चलेंगे, वो खाएंगे तो क्या खाना पसंद करेंगे, वो सोएंगे तो कहाँ सोएंगे और किन लोगों को करीब रखेंगे, सब अलामतें बयान की गई। मुझे बताओ मौलूद मुस्तफा कब से चल रही है? कब से चल रही? यही जिक्र मुस्तफा ही को तो मौलूद कहते हैं। यौम अलस्त में भी मुस्तफा का जिक्र, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा में भी मुस्तफा का जिक्र, नारे नमरूद में भी मुस्तफा का जिक्र, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बह में भी मुस्तफा का जिक्र, मूसा अलैहिस्सलाम के गर्क होने से पहले, फिरौन को गर्क करने से पहले भी मुस्तफा का जिक्र, ईसा रूहुल्लाह की जुबान पर भी मुस्तफा का जिक्र। जिक्र तो चलता रहा। फिर वो मक्का की वादियों में बीबी आमिना की जुबान पर भी पैदा होने से पहले जिसका जिक्र है मेरे मुस्तफा का जिक्र है। अब यहाँ पर सैयदा कायनात बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी बयान किया, वो आलम इम्कां के शाह, वो कौनैन के ताजदार जब तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाहाना अंदाज से ही तशरीफ लाए। दुनिया के वो शहंशाह आए और अपनी जिंदगी बिताई। मेरे अजीजों, अब क्या मौलूद खत्म हो गई? नहीं, हुजूर के जाने के बाद रोज बरोज मौलूद जारी है। यौम अलस्त से आज तक मौलूद चल रही है। आज तक बड़े वो कहते हैं ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। आला हज़रत ने फरमाया रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नफरत करने वाले क्या उनके जिक्र को कम कर सकेंगे? कम हरगिज नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मेरे आका की शान में तुमने हर्जा सराई की, अल्लाह रब्बुल इज्जत लाखों के दिलों में फिर से शम्अ इश्क मुस्तफा रोशन करेगा।
हाँ, ये अल्लाह ताला का कानून है। जब कभी किसी ने नबी की शान भौंकने की कोशिश की, अल्लाह ने कुत्तों को तक जुबान अता कर दी है। हाँ, कुत्ते भी भौंक करके, वो पादरी का जो सीना चाक कर दिया था बगदाद में, कुत्ते ने सिर्फ हुजूर की तौहीन सुन करके फाड़ करके रख दिया। तो इनको अंदाजा नहीं कि कब कुत्ता शेर बनता है। ये रब्बे जुल जलाल के तरफ से इनामात हैं और इंतजामात भी हैं। बहरहाल, क्या मौलूद मुस्तफा खत्म हुई? नहीं, अब तक जिंदगी में चलती रही है। अब हमने सोचा कि चलो ये आलम इम्कान है, ये दुनिया है, यहां जिक्र चल रहा है, लेकिन हम मर करके कब्र में गए तो वहां पर भी छुट्टी नहीं है, वहां पर भी छुट्टी नहीं। वहां पर भी फरिश्ते जो पूछ रहे हैं वो मुस्तफा के बारे में ही पूछ रहे हैं, हुजूर के बारे में ही पूछ रहे हैं। कुरान के बारे में सवाल ही नहीं हुआ। कब्र में ये नहीं पूछा गया बुखारी शरीफ पढ़े कि नहीं पढ़े, मुस्लिम शरीफ पढ़े कि नहीं पढ़े, 10वीं पास हो कि नहीं पास हो, ये भी नहीं, बल्कि पूछा जा रहा है रसूल पाक के बारे में तू क्या कहता था। अच्छा, अब यहां पर सवाल भी कितना अहम है, मां कुंत तकूल, क्या कहता था। ये नहीं पूछ रहे फरिश्ते तू क्या मानता था, तू क्या मानता था। हो सकता है तू रसूल भी मानता था, नबी भी मानता था, लेकिन कहता क्या था, कहता क्या था। यही कहता था ना, दीवार के पीछे इल्म नहीं है, पीठ पीछे की खबर नहीं है, वहां हाजिर होना, यही कहता था। क्या अब कह करके दिखा, भाले पड़ेंगे सीने पर फरिश्तों की तरह और ऐसा मारेंगे 2 मील अंदर जाएंगे। हाँ, कब्र के अजाबात जो है बहुत सख्त अजाब है। फरिश्ता एक भाला सीने पर मारता है तो 2 मील अंदर जाता है मुर्दा, फिर उसे निकाला जाता है, उसकी हड्डियां टूटने का, पूरी उसकी आवाजें जानवर भी सुनते हैं। फरमाएगा कब्र के अजाब ऐसे होते। फिर पूछा जाएगा मां कुंत तकूल, बोल क्या क्या कहता था, क्या क्या कहते थे। सब कहेंगे, वो सब बोलेंगे कब्र में जाकर के मौलूद जायज नहीं थी, जुलूस जायज नहीं था, ये बिदात था, ये सब कहते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सवाल होगा तो हम कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते हो जाएंगे और खाक हो जाएं जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सवाल वहां पर भी हुजूर के बारे में ही हो रहा है। कब्र में भी जाए तो इसीलिए कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही है, वहां पर भी छुट्टी नहीं है। अब यहां दुनिया में तुम भोग तो रहे थे, लेकिन वहां जाने के बाद देखा कि इनके अलावा कुछ नहीं होना है। इनके बारे में जवाब गलत दिया तो कयामत तक मारा जाऊंगा। चलो ठीक है, मारे जाते रहे, मारे जाते रहे। इसराफील ने सूर फूंक दिया, कयामत कायम हो गई। कुछ मुर्दे सोचेंगे चलो कब्र से बच गए, कब्र से बच गए। हश्र में उठा तो देखा यहां भी शहंशाह वही है। हश्र में पहुंचा तो देखा फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अरे मियां, ये तो सोचो, क्या अल्लाह अलीम खबीर नहीं है? क्या वो दिलों के हालात नहीं जानता? वो हर बंदे को जानता है कि गुनहगार कौन था, नेकोकार कौन था, नमाजें किसने कितनी पढ़ी, सब मौला को मालूम है। बल्कि उसने फरिश्तों से लिखवा भी लिया है। होना तो ये चाहिए था, इधर मरा उधर जहन्नम में डाल देता, इधर मरा जो नेक है उसे जन्नत में डाल देता। कब्र से इतने लंबे अरसे के बाद फिर जो कयामत का मंजर होना है, ये क्यों रखा गया मौला? अल्लाह तू तो जानता ही है कौन नेक है कौन गुनहगार है। जो नेक है उसे जन्नत में भेज दे, जो बुरा है उसे जहन्नम में भेज दे। लेकिन ए रब्बे जुल जलाल, सारे लोगों को एक मैदान में तू क्यों खड़ा कर रहा है? और फिर 50,000 साल के बराबर का एक दिन क्यों बना रहा है? मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम है, आज आपको मालूम है, फिर भी आप जाकर के क्या करेंगे कयामत के दिन? पता है, हदीस तो सुना है ना आपने कि महशर के दिन शफाअत कौन करेंगे? पक्की बात है, सबको पता है कौन शफाअत करेंगे। लेकिन हदीस में है कि सारी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास पे आएगी। सबसे पहले आप कहां जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम के पास। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी, आज मेरी पड़ी है, मुझको मेरी जान की पड़ी है, जाओ किसी और के पास। फिर ये नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हर नबी के पास ये पूरी मखलूक घूमेगी।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास और सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सबके पास ये मखलूक घूमती रहेगी। किस बात को लेकर के हमारी सिफारिश कर दें अल्लाह की बारगाह, हमारी शफाअत कर दें अल्लाह की बारगाह में। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? शफाअत आखिर कौन करेंगे? तो डायरेक्ट क्यों नहीं चले जाते महशर के मैदान में? कोई तो ऐसा बुद्धिमान हो कि सीधे हुजूर की बारगाह में चला जाए। नहीं, वहां पर सारे घूमते रहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। ईसा अलैहिस्सलाम बताएंगे कि ऐ लोगों, आज के दिन एक ही शख्स तुम्हारी सिफारिश कर सकता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तब सब के सब मिलकर के हुजूर के पास आएंगे और कहेंगे कि हमारी सिफारिश कर दें। तब रसूलुल्लाह फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, हाँ मैं इसी के लिए तो बैठा हूं, मैं इसी के लिए तो बैठा हूं। अब ये बात समझ नहीं आती लोगों को कि इतना लंबा क्यों घुमाया, सब कहां कहां जाते रहे। आला हजरत फरमाते हैं खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कही, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कही, कहीं न बनी ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे। अब ये जो मामलात हैं, मरने के बाद अल्लाह ताला डायरेक्ट उठाकर जन्नत में भी नहीं डाल रहा है, डायरेक्ट उठाकर दोज़ख में भी नहीं डाल रहा है, महशर के मैदान में खड़ा किया जा रहा है और सारे नबियों के पास घुमाया जा रहा है। फिर आखिर में मेरे मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जा रहा है और हुजूर जब सिफारिश करेंगे, सजदे में जाएंगे, तब रब ताला फरमाएगा ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, जिसकी सिफारिश करोगे कबूल किया जाएगा, आप जिसके बारे में कहेंगे वो कबूल किया जाएगा। यही तो बात थी। कयामत का मंजर जो है, असल मामला हिसाब व किताब, असल मामला ये तमाम जो है वो कहां से साबित होता है? फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हाँ, तुम जो यहाँ इनकार करते थे, इतना इल्म था, उतना इल्म था, पीठ पीछे का नहीं था, दीवार के पीछे का नहीं था, तुम सबको बताया जाएगा कि उस दिन अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। हाँ, उस दिन तुम देखना मेरे आका का मसनद कहाँ लगेगा, मेरे आका का झंडा कहाँ लगेगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। घबराना नहीं सुन्नियों, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। हाँ, यही बात हम इसी पर अपनी गुफ्तगू रखते हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। कयामत के दिन भी किसी की अगर बात हो रही है तो किसकी हो रही है? रसूलुल्लाह की हो रही है। मेरे अजीजों, यौम अलस्त में भी वही नाम, अंबिया की जुबान पर वही नाम, दुनिया में आए तो हर मस्जिद में वही नाम। कहां कहां नहीं है वो नाम, हर जगह पर वही नाम है। सहाबा ने कहा, बल्कि अंबिया ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने सारे आसमानों के दरवाजों पर देखा, अल्लाह ने अपने नाम के साथ अगर कुछ रखा है तो सिर्फ हबीब का नाम है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। अब हम अपने रसूल को क्या कहते हैं? मालिक आप ही हैं, आप मालिक है या रसूल अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो महबूब और मुहिब होते हैं उसमें मेरा तेरा नहीं होता है। जो महबूब का है वो मुहिब का है, जो मुहिब का है वो महबूब का है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जहां जहां देखा हुजूर का नाम ही देखा। इसीलिए इकबाल ने कहा दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है। वो नाम कहां कहां है? दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और बुजुर्गों के तरीके पर चलते हैं, जो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, उनका वतीरा और उनका तरीका तो ये है कि खुदा एक पर हो और एक पर मोहम्मद। हुजूर का नाम कहां कहां है? खुदा एक पर हो और एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं,
हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। और मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं अगर मेरे दिल के दो टुकड़े कर दिए जाए तो तुम यहाँ पर भी एक टुकड़े पर अल्लाह का नाम पाओगे, दूसरे टुकड़े पर मोहम्मद का नाम पाओगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हमारा भी यही वतीरा होना भी चाहिए। वो मुस्तफ़ा का नाम जब यौम अलस्त से चल रहा है, अल्लाह के नबियों की जुबान पर चल रहा है, शजर व हजर में भी वही है और बरगो शजर में भी वही है, सूरज व कमर में भी वही है, नाम हर जगह मौजूद है मुस्तफ़ा का। तो क्यों ना उस नाम पाक को अपने आंखों में बसा लिया जाए, अपने सीने में बसा लिया जाए और फिर ये कहा जाए उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और कब्र में पहुंचे भी तो इस मुस्तफ़ा से ऐसी मोहब्बत करके जाएं, ऐसी मोहब्बत करके जाएं, इतनी मोहब्बत करके जाएं कि फरिश्ते आए भी। बहुत सारी बातें मैंने कब्र की बात का सवालात के बारे में, अब ये बात भी सुन लो कि एक आशिक रसूल क्या कहता है फरिश्तों को कि फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कह दूंगा लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार है आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार। हाँ, आंखों में इतना बसा लो मेरे मुस्तफा को कि अगर कोई तुम्हें देखे तो वो हुजूर का दीवाना बन जाए। ये कब होता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि दीवार है, दीवार ये तो है पत्थर की, दीवार पत्थर की है, अब इस पर टाइल्स लगा है, या चलो दीवार की बात नहीं, घड़ी हम पहने हैं कभी शीशा लगा हुआ रहता है, शीशा लगा हुआ है और बाहर जब दोपहर में धूप का वक्त होता है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये शीशा चमकता है, जिधर डालोगे उजाला होता रहता है, बच्चे खेलते भी रहते हैं, शीशे को इधर किया रोशनी उधर गई, इधर किया उधर गई। क्या वो रोशनी शीशे की है? नहीं, किसकी रोशनी है? सूरज की रोशनी। सूरज की तरफ किया घड़ी को, शीशे को, सूरज ने रोशनी डाली और तुम जिधर घुमाए रोशनी उधर घूमती रही। इसीलिए कहा गया कि अपने कल्ब को आफताब रिसालत की तरफ कर दो। वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत का सूरज है, अगर उसकी किरणें तुम्हारे दिल पर पड़ी फिर तुम्हारा दिल जिस तरफ जाएगा रोशनी उधर ही जाती रहेगी। ये जो दीवानों का हुजूम इधर उधर आशिकों के पीछे होता है वो उनकी अपनी हैसियत नहीं, वो नूरे मुस्तफा की वजह से है। जो हुजूर से मोहब्बत करेगा उसके कल्ब पर हुजूर की किरणें पड़ती हैं, रसूल पाक की मोहब्बत की रोशनी पड़ती है और फिर लोग उस उजाले में ये जौक दर जौक उसके पीछे आते हैं। आपके साथ भी यही होगा, हुजूर से मोहब्बत करो, कायनात तुमसे मोहब्बत करेगी, रोशनी तुम्हारे पास आएगी। इतना बसा लो अपने सीने में उस नाम पाक को कि तुम्हारे आसपास बैठने वाला तौबा करके उठे, अपने गुनाहों से बेजार हो करके उठे। जब कोई तुम्हारे पास आए तो वो तुम्हारे कल्ब की रोशनी में अपने दिल की सफाई करके जाए, अपने दिल की सफाई करके जाए। इतनी मोहब्बत तो हुजूर से हमें करनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करनी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आखिर में मैं ये इल्तिजा भी करूंगा, दुआ भी हम यही करते हैं जो हमेशा ये करते आए, या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, या रसूल अल्लाह, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम गरीबों का, हम आज जो बेसहारा और बेआसरा हैं, कोई अगर आसरा है तो या रसूल अल्लाह सिर्फ आपकी जात है। हमने आपको माना और आपकी तारीफ की और आपके गुस्ताखों के खिलाफ हम कमर बस्ता खड़े रहे। या रसूल अल्लाह, अगर हमारे साथ दुनिया ने धोखा किया या हमें आजमाइश में डाला गया या हमारे साथ मशक्कतें और मुसीबतें डाली गई तो सिर्फ हम दुहाई भी देते हैं तो आपकी बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका,
مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ دل بھی ہمارا وہی ہو، روح بھی ہماری وہی ہو، ہمارے تمام اعضاء حضور کی بارگاہ میں ہو۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے کہا ہے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عاشق رسول چلتا پھرتا دنیا میں ہے لیکن ساری چیزیں حضور کے قدموں میں رکھتا ہے، دل بھی وہیں، جان بھی وہیں، روح بھی وہیں، آنکھ بھی وہیں، سب کچھ وہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں سارے اولیاء وقت کو یہ کہا تھا۔ حمد کی ایک آخری شعر کو جو میں نے اس سے قبل شاید ہو سکتا آپ کے سامنے تشریح کی ہو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدا۔ اس حمد کے آخری شعر میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں قطب الارشاد کا مقام رکھتے تھے۔ قطب الارشاد کسے کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں ایک اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ دوسروں کو ولایت عطا کرتا ہے، وہ قطب الارشاد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ تھا، اور قطب الارشاد اپنے زمانے کے جتنے اولیاء ہیں انہیں جو چاہے حکم دیتا ہے، جو چاہے انہیں آرڈر کرتا ہے کہ اے زمانے کے اولیاء فلاں کام کرو، فلاں جگہ متعین ہو جاؤ۔ قطب الارشاد یہ حکم دے سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کو قطب الارشاد کہا حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے۔ اب میں ان کی ایک شعر کی تشریح کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی نعت میں لکھا ہے، وہی حمد میں لکھا ہے کہ ایک بار انہوں نے آرڈر کیا سارے اولیاء وقت سے، جو زمانے کے ان کے اولیاء تھے، کیا حکم دیا؟ کچھ بھی حکم دے سکتا ہے قطب الارشاد۔ حکم یہ دیا کہ میرے دل کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کیا حکم دیا؟ میرے دل کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب حکم کی پابندی اور تعمیل کرنا ضروری ہے اولیاء وقت کو۔ دل کا مطلب یہ گوشت کا لوتھڑا ہی نہیں، اہل بصیرت جانتے ہیں دل کسے کہا جاتا۔ دل کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ اس دل کو ڈھونڈنے کے لیے اولیاء کو کہا، سب ڈھونڈنے پہ لگ گئے۔ اسی کو ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت شعر میں کہتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھ حمد ہے خدایا۔ یہ آپ نے آرڈر دیا ایک شعر میں، اور سارے اولیاء ڈھونڈنے پہ لگ گئے۔ کیا کرنا ہے؟ رضا کا دل ڈھونڈنا ہے، اعلیٰ حضرت کا دل ڈھونڈنا ہے۔ وہ سب ڈھونڈ کر کے واپس آئے، اور انہوں نے جو جواب کہا اعلیٰ حضرت نے وہ اپنے شعر میں لکھا۔ سبوں نے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ عاشق رسول کا قلب بھی اگر کہیں ہوتا ہے تو در مصطفیٰ پر ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی ہماری جان، ہماری روح، ہمارا قلب، ہمارا سب کچھ وہی ہو، یہی اصل محبت ہے میرے عزیزو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر نہیں ہو سکا تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی زندگی دے ہر ساتھ میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزیں فرمائے، رسول پاک کے نام پر ہماری گردنیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، تیرے حبیب کی میلاد کی آنے کی سعادتوں میں ہم سب کو بھی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ وہ برکتوں کا اور رحمتوں کا جو نزول ہونے والا ہے ان میں سے حصے ہمیں بھی عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، سامعات ہیں، اس مسجد پاک کے اراکین ہیں، انتظامیہ، امام ہیں، جتنے خدام ہیں، مولا سب کو حضور پاک کی محبتیں عطا فرما، ان کی میلاد مبارکہ کا صدقہ ان کی جھولیوں میں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور پاک کا دیدار عطا فرما دے، دنیا میں بھی ان کا غلام رکھ، آخرت میں ان کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دنیاوی مصائب کو دور کر دے،
اے اللہ ہماری روحانی بیماریوں میں شفا عطا کر، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام پر اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بعد غم مغرقون، خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا، سهل لنا إشكالنا يا رب بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں،
تھوڑی دیر کے لیے حضرات بیٹھ جائیں، حضرت گلپوشی کے لیے آپ حضرات بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. حضرت کی بارگاہ میں ہماری مسجد کے صدر محمد خالد صاحب حضرت کی بارگاہ میں گلپوشی پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.